Okay, so we are talking about Taylor series, um, Taylor series expansions of various functions, and now it's turn to talk about the Taylor series of log of 1 plus x. So if you have a function like fx is equals to log of 1 plus x base e, we are considering it. Okay, you can also write it as a natural logarithm of x. Okay, so we are trying to find we will try to find out the Taylor series of this function about x is equals to 0. ठीक है, क्या होना चाहिए टेलर सीरीज होता क्या है? बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अगेन वी कैन राइट इट एज the mth derivative of f evaluated at x equals to 0 divided by m factorial into x to the power m. This is the Taylor series by definition. Okay, तो सबसे पहले करना क्या होगा हमको? एफ एक्स हमारे पास है ln ऑफ 1 प्लस एक्स नेचुरल लॉगरिथम. ओके, तो डेरिवेटिव क्या होगा? लॉग का डेरिवेटिव होता क्या है? लॉग का डेरिवेटिव अगर याद होगा आप लोग को, हमने डिराइव किया था कि लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है. लॉग का डेरिवेटिव होता है, if you have not seen those videos, please do go and watch those videos. Are very useful. Those are very basic videos. Okay, how to differentiate a function, how to make sense of the rules of differentiation of a function. Okay, so those things you should know. So for the first derivative of this function is d dx of log of 1 plus x. तो log का डेरिवेटिव क्या होता है? बेस ई के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो log बेस ई 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 1 बाई द आर्ग्यूमेंट ऑफ log. तो 1 बाई आर्ग्यूमेंट ऑफ log कितना? 1 प्लस एक्स. ठीक है, 1 प्लस एक्स. तो क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है यहाँ पे देखो, अगर आपको याद नहीं है तो डी डी एक्स जो होता है ऑफ लॉन एक्स जो होता है वो होता है 1 बाई एक्स. ठीक है, तो इसीलिए log of 1 plus x क्या होगा? 1 by 1 plus x. Because if you apply chain rule to differentiation of log of 1 plus x, you will get 1 by 1 plus x times the differentiation of 1 plus x, which is 1. So you get the differentiation of log of 1 plus x is 1 by 1 plus x. Same way, अगर आप देखते हो डबल डेरिवेटिव इसका, वो क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स. 1 प्लस 1 प्लस एक्स क्या होगा? किसको इसको कैसे लिख सकते हैं? डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1. ओके, अब ये क्या है? पावर फॉर्म में आ गया ना, जैसे कि हम बोलते हैं ना डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन. अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 1 इंटू डी डी एक्स, sorry, this is माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स. एक्स की जगह पे क्या है? यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, टू द पावर माइनस वन टाइम्स डी डी एक्स. वी आर यूजिंग चेन रूल. डी डी एक्स ऑफ 1 plus x. So this turns out to be minus, and this is 1 plus x to the power minus 2, which you can write as minus 1 by 1 plus x square times d dx of 1 plus x is 1. So you get the second derivative to be this. This is the second derivative. Now to find the third derivative, what you will do is again differentiate this. You can differentiate this function. So this is d dx of minus of 1 plus x square. Okay, so again you can write this as d dx of minus, you can take it outside, 1 plus x to the power minus 2, and what you will get is minus 2. You can take out minus 2 will come outside, so minus into minus is plus, so it's 2 divided by, you will get 1 plus x to the power minus 2 minus 1, which is minus 3, so you can bring it down, 1 plus x to the power 3. So this is your third derivative. Okay, this is your third derivative, and you can go on like this. You can go on like this. We are that suffices for us. That suffices for us. Now let us find out the values, because we want the values that x is equals to 0.
तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा, एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वन प्लस जीरो विच इज लॉग ऑफ वन। तो लॉग ऑफ वन कितना होता है, लॉग ऑफ वन जीरो होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आ गया जीरो। दूसरा देखो यहाँ पे अगर आपने कैलकुलेट करते हो कि एफ डैश ऑफ जीरो क्या होगा, वन बाई वन प्लस जीरो विच इज वन, ठीक है, ये आ गया वन। अभी यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव के लिए क्या आया वैल्यू, डबल डेरिवेटिव के लिए आया एफ डबल डेरिवेटिव एट जीरो एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई वन का स्क्वायर, तो इट इज माइनस वन। तो एफ डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ गया, माइनस वन, ठीक है। इसी तरह से एफ ट्रिपल डेरिवेटिव का क्या वैल्यू आ गया, एवेल्युएटेड एक्स इक्वल्स टू जीरो, दिस इज टू, ओके, टू बाई वन प्लस जीरो का क्यूब, तो वन का क्यूब इज वन, तो इट्स टू basically, so it is 2। तो आपको मिल गया ऑलरेडी टेलर सीरीज। कैसे लिखेंगे देखो, टेलर सीरीज क्या हो गया इसका फिर, लॉग बेस ई ऑफ वन प्लस एक्स जो हो गया, विच यू कैन ऑल्सो राइट एज द नेचुरल लॉगरिथम, ओके। द सीरीज कम्स आउट टू बी m equals to 0 to infinity, and the first term, you see the first term here, first term is 0, f of 0 is 0, the first term should give you 0, the second term survives, the second term is 1, the second term is 1, the coefficient is 1, the third term is will be minus 1, the coefficient is minus 1 actually, okay। So अगर आप इसको लिखते हो इन दिस फॉर्म बेसिकली यही है हमारा टेलर सीरीज ना, यही हमारा टेलर सीरीज है। तो जो पहला टर्म है आपका, पहला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, दूसरा टर्म से स्टार्ट होगा, इसका मतलब दूसरा टर्म क्या है, वन बाई वन फैक्टोरियल, एम इक्वल टू वन के लिए वन फैक्टोरियल इंटू एक्स, उसको हम एक्स ही लिख सकते हैं सीधा सीधा, सो इट्स एक्चुअली एक्स। दूसरा टर्म क्या आएगा, दूसरा टर्म इज द डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे देखो, डबल डेरिवेटिव इज माइनस वन, है ना, डबल डेरिवेटिव इज माइनस वन, तो माइनस माइनस आ गया वन डिवाइड एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, फैक्टोरियल लिखने का तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्टोरियल लिख दो, टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू टू। देन थर्ड डेरिवेटिव इज टू, थर्ड डेरिवेटिव इज टू, तो थर्ड डेरिवेटिव आगे ऊपर टू आ गया, नीचे क्या आ गया, थ्री फैक्टोरियल इन टू एक्स क्यूब, ये चलता जाएगा ना, चलता जाएगा, साइन भी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो x माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ऊपर टू है, नीचे थ्री फैक्टोरियल है, थ्री फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, थ्री फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि you have टू बाई थ्री फैक्टोरियल मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन, अभी टू से टू कट गया तो बचा क्या थ्री, तो एक्स क्यूब बाई थ्री, ठीक है। पैटर्न समझ में आ रहा है। अभी देखो नेक्स्ट बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, एक बार और करके दिखा देते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट किए इसको, तो क्या आएगा, ये टू है, पर टू है, ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थ्री है, तो थ्री बाहर आएगा, फिर तो एक माइनस भी आएगा साथ में, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो माइनस आएगा, तो इंटू थ्री भी हो गया, डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स टू द पावर क्या आ जाएगा, फोर आएगा, फोर आएगा। So if you will find out the value of this function, the fourth derivative at 0, it will give you what, minus uh, you can say 3 factorial, है ना, माइनस थ्री फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हो टू फैक्टोरियल, है ना, ऊपर वाले को इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस वन फैक्टोरियल, जिस मतलब ये बेसिकली पैटर्न दिखाने के लिए हम कर रहे हैं सर, बेसिकली ये पैटर्न दिखाने के लिए हम कर रहे हैं सर, ठीक है, आपको पता चल जाए कि पैटर्न क्या है यहाँ पे, तो इस तरह से आपको पैटर्न दिखना चाहिए। तो द फोर्थ डेरिवेटिव, अगर फोर्थ डेरिवेटिव हम लिखते हैं यहाँ पे, तो फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा, फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट माइनस थ्री फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा, फोर फैक्टोरियल टाइम्स एक्स टू द पावर फोर, ठीक है, चलता जाएगा इस तरीके से। तो अल्टीमेटली क्या आ गया आपके पास, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, ठीक है,
यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा 4 बच गया ना, सिर्फ नीचे 4 बच गया, x टू द पावर 4 बाई 4। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, आना चाहिए इस सीरीज के अकॉर्डिंग 5 आना चाहिए, ठीक है, ये चलता जाएगा इस तरीके से। So this is your Taylor series of the natural logarithm of 1 plus x about x is equals to 0, about x equals to 0, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना है इसमें, एक चीज़ ये ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे जो x का वैल्यू है ना, मतलब कि इस सीरीज पे यूज़ करके आप इस सीरीज को यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ पे रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आएगा, लॉग का जो वैल्यू आना चाहिए वो हमेशा रियल होना चाहिए। Okay, so you should know कि for the value of the log function to be real, the argument cannot be negative, माने कि 1 plus x should not be equal to 1 plus x जो होगा, that 1 plus x cannot be negative, so it can it has to be greater than 0, in fact it has to be greater than 0, so this 1 plus x has to be greater than 0, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता, बस ये ध्यान देना। तो आपका डोमेन बेसिकली जो होगा वो डोमेन जो इसके लिए होगा वो होगा x विल बी ग्रेटर देन -1, तो ये आपका डोमेन है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस सीरीज को यूज करके x इक्वल टू -2 पे लॉग का वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, बिकॉज इट्स अ रियल वैल्यूड फंक्शन दैट वी आर कंसिडरिंग। So this thing is a subtle point, you should remember that। यहाँ पे जो x जो हम x के अबाउट में निकाल रहे हैं टेलर सीरीज को, इसका यूज़ हम एक इन सर्टन रीजन में ही कर सकते हैं टू फाइंड और अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि लॉग ऑफ 1 मतलब x कुछ भी हम ले लें, मान लीजिए x इक्वल टू -100 ले लेते हैं, -100 के लिए log of 1 plus -1 -100 क्या रहेगा, log of -99, but log of a negative number gives you a complex number, it doesn't give you a real number, okay। Therefore this series will not hold good in that interval. This series will only hold good in a certain region, and that region is actually -1 to +1, okay। So the region of validity, we will talk about the region of validity of a Taylor series, we will talk about that, we'll talk about the region of validity of a Taylor series, okay, in later videos। So for now this is the Taylor series of log of 1 plus x about x equals to 0, about x equals to uh, 0, okay। So अभी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस यहाँ पे लिख देते हैं कि जो या इसका वैलिडिटी होगा वो इस वाले रीजन के लिए वैलिड होगा। साइन का, कॉस का सब पूरे में वैलिड होता है, -∞ प्लस ∞ वैलिड होता है, एक्सपोनेंशियल का भी पूरे में वैलिड होता है, इसलिए वहाँ पे हम लिखे नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखना जरूरी है, बिकॉज दिस इज द रीजन ऑफ वैलिडिटी ऑफ दिस टेलर सीरीज ऑफ log of 1 plus x, the real Taylor series of log of 1 plus x is confined actually to the points between x equals to -1 to x equals to +1, excluding those excluding -1 and +1, okay। So I hope you got how to find Taylor series of functions, okay। Next, in the next video we'll see how the binomial series arises, how the binomial expansion of binomial series, you can say binomial series arises out of Taylor series. So basically we will try to see how a binomial series is actually the Taylor series of the function of which we are trying to binomially expand. So binomial series जो होता है वो भी एक Taylor series ही होता है। In the next video we'll see that, okay। So see you in the next video।